السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ قوم کا درد چینل کی جانب سے نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کی بیٹی کو جنات اٹھا کر کے لے گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ کے جلال کا عالم دیکھیے کیسا تھا۔ تو آئیے ہم یہ ایمان افروز واقعہ سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کا بٹن دبا لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے ساتھ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کا ایک مرید دوڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں عرض کی، حضور سرکار غوث اعظم میرے پیر میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار سب کے سامنے بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ غوث اعظم نے اپنے حجرے سے سارے لوگوں کو باہر کر دیا۔ اب ان سے پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ عرض کرتے ہیں سرکار اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، وہ بیٹی بھی بڑی خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے۔ میرے سرکار میں نے اپنی بیٹی کو آج تک گھر میں رہ کر ہی تعلیم دی ہے، میں نے اس کو باہر کسی کام سے نہیں بھیجا ہے۔ میں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی بچی کو پروان چڑھایا ہے اور میں نے اس کا نام رکھا ہے فاطمہ۔ جب میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے حسن و جمال میں اور زیادہ نکھار آ گیا۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی ہے، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی کپڑا سکھانے کے لیے تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میرے چھت کے اوپر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھاند کر کے کہیں نہیں جا سکتی، اور نیچے اترنے کا زینہ بھی ایک ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں بھی میں نے پتہ کروا لیا ہے، میں نے رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، لیکن کہیں پر میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اپنی پریشانی دور کر دو، تم اس بارگاہ میں آئے ہو جس بارگاہ میں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی نگاہیں بند کی اور چند ہی لمحوں کے بعد نگاہیں کھولتے ہیں تو اپنے مرید سے فرمایا، اپنے دل کی بیتابی دور کر دو، یہ اپنی بیتابی دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی، زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے مرید تم جانتے ہو کرکھ کے ویرانے کو؟ مرید نے عرض کی، سرکار بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم کرکھ کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا ٹیلا چھوڑنا، دوسرا ٹیلا چھوڑنا اور تیسرے ٹیلے کی چوٹی پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر کے میرا نام لینا، بسم اللہ بنیت عبد القادر یہ پڑھ کر کے اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دہاڑتے ہوئے
भयानक आवाज़ें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन्नात मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो सारे जिन्नातों की फ़ौजें निकल कर के चली जाएंगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को एक जगह से उठा कर के दूसरी जगह ले जा सकता है। वो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो ये सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो भी नहीं पार कर सकता। हज़रात, तो हुज़ूर गौसे आज़म मुरीद से फरमा रहे हैं कि वो शहंशाह जिन्नात फिर आपसे पूछेगा तो आप पूरी दास्तान उसको बता देना कि मैं हुज़ूर गौसे आज़म का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे अपनी बेटी आज ही चाहिए, ज़िंदा चाहिए और पूरी इज़्ज़त के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी की इज़्ज़त को बाल बराबर भी आँच आई तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौमे जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुज़ूर गौसे आज़म का ये मुरीद चल देता है करख के वीराने की तरफ। 2 टीले छोड़ने के बाद में तीसरे टीले पर जाकर के बैठ जाता है। मुरीद था, गौसे आज़म का इरादा पक्का था, पीर से दिल से मोहब्बत करता था। करख के वीराने में जाकर के हुज़ूर गौसे आज़म का नाम लेकर के अपनी उंगली पर दम किया और अपने चारों तरफ लकीर खींच ली, बैठ जाता है। जिन्नातों की फ़ौजें गुज़रना शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े भयानक जिन्नात, बड़े बड़े ख़तरनाक, बड़े बड़े डरावनी शक्ल वाले जिन्नात गुज़र रहे हैं और उसके ऊपर हर तरह से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौसे आज़म के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो टच करते हैं तो उससे टकरा कर के ऐसे भागते हैं जैसे बिजली का करंट लग गया हो। सब भागते चले जाते हैं। सारे जिन्नातों की फ़ौजें निकल कर के चली गईं। आखिर में आती है शहंशाह जिन्नात की सवारी। वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते के किनारे पर एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ वह उन पर हमला करने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आज़म के नाम पर खींची हुई लकीर से जाकर के टच हुआ तो वहीं पर घुटने टेक कर के बैठ जाता है। पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बात क्या है? हुजूर गौसे आज़म के मुरीद ने अपना पूरा मुद्दा पेश करना शुरू किया कि मैं हुजूर गौसे आज़म का मुरीद हूँ, मेरी लड़की छत पर गई थी कपड़ा सुखाने के लिए, मेरी लड़की गायब हो गई है, कोई जिन्नात उसको उठा कर के ले गया है, मेरी लड़की मुझे आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी की इज्जत को बाल बराबर भी आँच आई तो हुजूर गौसे आज़म की निगाहे जलाल से पूरी कौमे जिन्नात को कहीं पर पनाह नहीं मिलेगी। और पनाह मिलती भी कैसे? हुजूर गौसे आज़म का जलाल तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाते हैं उठता है जब तेगा तेरा। हजरात, शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आज़म का नाम सुना, आवाज़ दी, अपनी पूरी फ़ौज जिन्नात को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद में कहा कि देखो ये हुजूर गौसे आज़म का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन्नात उसको उठा कर के ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समुंदर की गहराई में उतर जाओ, दरियाओं की गहराई में उतर जाओ, कुओं की गहराई में उतर जाओ, पहाड़ों की खो में उतर जाओ, वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, खंडरात में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर के आना है और जो जिन्नात उस लड़की को लेकर के गया है उसको भी लेकर के आना है।
पूरी फौज जिन्नात चल देती है। फिर शहंशाह जिन्नात ने वापस बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि आकर के ये मत कह देना कि लड़की हमको नहीं मिली है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आज़म अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। गौसे आज़म का भेजना ये दलील है कि वो लड़की जिन्नात के पास है। सारे के सारी फौजें जिन्नात दरियाओं की तह में, खंडरात में, आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों की खो में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद वो जिन्नात उस लड़की को और जो जिन लड़की लेकर के गया था उन दोनों को शहंशाह जिन्नात की बारगाह में ले आए। उन जिन्नातों ने कहा, है शहंशाह जिन्नात, हमने इसको बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। ये चीन के सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे गहरी खो में और उसके कोने में इस लड़की को लेकर के छुपा हुआ था। शहंशाह जिन्नात ने पूछा कि ये बता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुझे ये पता नहीं है कि बगदाद हुजूर गौसे आज़म की राजधानी है, बगदाद हुजूर गौसे आज़म का शहर है। तुझे हुजूर गौसे आज़म के शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? जिन्नात ने कहा, शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और ये अपने स्टाइल और अपने नाज़ो अंदाज में इस तरह से बेफिक्र खड़ी थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि नादान, तूने पूरी कौमे जिन्नात को ख़तरे में डाल दिया। अगर शेख की निगाहे जलाल उठ जाती तो पूरी कौमे जिन्नात को दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलती। शहंशाह जिन्नात ने एक जिन्नात जल्लाद को बुलाया और उसको हुक्म दे दिया कि इसकी गर्दन मार दो, उसको कत्ल कर दिया जाता है। और उस लड़की को गौसे आज़म के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा कि ये लीजिए और शेख की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना, और तुम्हारी बेटी ज़िंदा सही सलामत आज ही पूरी इज़्ज़त के साथ तुमको मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कह कर के चल देता है। गौसे आज़म के मुरीद ने आवाज़ दी, शहंशाह जिन्नात ज़रा हमारी बात सुनो। शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? गौसे आज़म के मुरीद ने कहा कि ये बताओ, क्या तुम लोग भी हुजूर गौसे आज़म को मानते हो? इतना सुनना था। शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौसे आज़म जैसे इंसानों के शेख हैं, जैसे वो इंसानों के हाकिम हैं, वैसे जिन्नातों के भी हाकिम हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं। शेख की निगाहे जलाल जब उठ जाती है तो पूरी कौमे जिन्नात में जलजला आ जाता है। हज़रात, तो बताना ये था मुझे कि आपने ये देख लिया कि जब लड़कियां, बहन बेटियां बेपर्दा घर से निकलती हैं तो न जाने कितनी खुफिया मखलूक रास्ते में चलती रहती है, न जाने कितने मन चले जिन्नात हमारी बहन बेटियों को बेपर्दा देख करके उन पर आशिक हो जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है आप मज़ारात पे जा कर के देखिए, इधर खेल रही हैं, उधर कूदती हैं, उधर जिन्नात की हाज़िरी है। इसलिए तो आक़ा करीम ने फरमाया है कि तन्हाई में भी अपनी बेटी को छत पर अकेला मत जाने दो। ये शरीयत मुस्तफ़ा के कानून है, इन पर अमल कीजिए तो आप ज़रूर इन सारी बलाओं से दूर रहेंगी। घर में रहें तब भी पर्दे का एहतिमाम, घर से बाहर जाएं तब भी पर्दे का ख्याल रखें। ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दीनी वाक़यात और दीनी मालूमात सुनने के लिए मिलते रहेंगे। और प्लीज़ इस वाक़ये पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।